Hello dear children, welcome to my English video class for 26 June children. As you can see on the board, I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take care of yourselves, keep yourself safe and keep yourself at home. Unnecessary bahar nahi ghumna. Follow all the necessary precautions. And children, this season as such, it is rainy season now, and in this season as such we tend to fall sick. इस सीजन में ऐसे भी थोड़ा जल्दी कई बार इन्फेक्शन हो गया, बुखार आ गया, सर्दी खांसी हो गई. सो डू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ. अपना बिल्कुल पूरा अच्छे से ध्यान रखो. लिसन टू योर पेरेंट्स. स्टे होम एंड स्टे सेफ चिल्ड्रन. We have started with lesson number 3, which is Little Red Hen. So I have told you, as I have told you, that this lesson is about a little red hen and 3 more animals. These 3 are a dog who was very lazy, a cat who was always sleepy, and a duck who was too noisy. बहुत शोर मचाने वाली थी. Okay, so I have explained the lesson once. एक बार पूरी रीडिंग करके मैंने स्टोरी बता दिया है. And now I am explaining the lesson word by word. Okay? So that is why I am writing the paragraphs on board so that you can follow along with me. आप मेरे साथ साथ follow कर सको and you can know that how each word is pronounced. हर एक वर्ड को हम कैसे बोलते हैं, कैसे उसको हम प्रोनाउंस करते हैं. ओके, तो yesterday we have done till not I said the noisy duck who was resting near the pool. Now children, in a sentence there are different words. ठीक है, और हर एक जो वर्ड होता है that belongs to different part of speech. पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि एक सेंटेंस में हर एक वर्ड का वो अलग अलग मैसेज कन्वे करता है. ओके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल रेड हेन. ठीक है, तो इसमें कोई वर्ड जो है हमें वो टाइम के बारे में बता रहा है कि बहुत पहले की बात है. सम वर्ड टेल्स अस अबाउट कि ये लाइन किसके बारे में है. सम वर्ड टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट नेमिंग वर्ड. ओके, सो इन अ सेंटेंस each word tells us about different meaning it conveys. Okay, she lived on a farm with a lazy dog, a sleepy cat and a noisy duck. Now in this sentence, since कल मैंने ये पैराग्राफ्स ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे थे इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, जस्ट एक बार वर्बली बता दे रही हूँ. ओके, she lived on a farm with a lazy dog, a sleepy cat and a noisy duck. Okay, now here this word she lived, here she is used for the hen. ठीक है, once upon a time there was a little red hen. एक टाइम की बात है, एक little red hen थी. तो यहाँ पे we know that we are talking about little red hen. ठीक है, little and red both words tell us about the qualities of hen. मतलब उसके क्वालिटी में वो वर्ड जो है उसकी हैबिट के बारे में बता सकता है, उसे कलर के बारे में बता सकता है, किसी भी नेमिंग वर्ड के लुक्स के बारे में बता सकता है. सो हियर लिटिल रेड hen. सो द वर्ड लिटिल टेल्स अस दैट द hen was little, छोटी सी थी, and red tells us the color of the hen. So little red hen means एक छोटी सी लाल रंग की मुर्गी थी. So now नेक्स्ट लाइन, शी लिव्ड ऑन अ फार्म. यहाँ पे जो वर्ड शी है, द वर्ड शी इज यूज्ड फॉर लिटिल रेड हेन. ठीक है, तो शी इज नोन एज शी इज अ प्रोनाउन. इस वर्ड शी को हम यहाँ पे लिटिल रेड हेन की जगह यूज कर रहे हैं. तो किसी भी नेमिंग वर्ड को बार बार रिपीट हम ना करें, उसके लिए क्या करते हैं, वी यूज सम प्रोनाउंस. उसकी जगह पे जो वर्ड्स हम यूज करते हैं दे आर नोन एज प्रोनाउंस. तो हियर द वर्ड शी इज यूज फॉर लिटिल रेड हेन. शी लिव्ड ऑन अ फार्म. लिव्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ लिव. ये मैंने बताया था. लिव मतलब रहना. ओके,
So she is a pronoun, live is a verb. It is an action word. On a farm. कहाँ रहती थी? एक farm पे. Farm is a place. Okay? So farm is a naming word because it is a place where someone lives. यहाँ पे इस lesson में a little red hen lived there. So farm is a naming word. Noun. Lazy dog. Lazy is the quality of the dog. ठीक है? Dog is the naming word and the word lazy tells us about the quality of the dog. ठीक है कि the dog was very lazy. So lazy is a describing word. Sleepy cat. Sleepy also tells us that cat was very sleepy. हमेशा सोती रहती थी. So sleepy is also a describing word and cat is a naming word. And a noisy duck. Noisy tells us that duck बहुत शोर करती थी, बहुत हल्ला करती थी. She used to talk too much. So noisy is also a describing word and duck is a naming word. Okay. One day the little red hen found some grains of wheat. One day, एक दिन. One is again a describing word. किस दिन? एक दिन. ठीक है. Day is a naming word. One is a describing word. The little red hen found. Found is again an action word. Found मतलब उसको मिले. ठीक है. Some is quantity. थोड़े से grains of wheat. Grains is also a naming word. Wheat is also a naming word. Who will plant the grains? She asked. Plant जैसे मैंने बताया था कल कि यहाँ पे plant is an action word. यहाँ पे plant का मतलब है पौधे को लगाना. Okay? So all the three animals refused. तीनों ने मना कर दिया. Now I will start from here. Then I will. Okay? Not I, said the lazy dog who was sitting under the table. Under is a preposition. Under tells us the place. Where was the dog sitting? The dog was sitting under a table. एक टेबल के नीचे बैठा था. So under is जो words हमें place या position बताते हैं किसी भी चीज की, किसी भी person की, they are known as prepositions. Okay? So under is preposition. Not I, said the sleepy cat who was on the tree. On का मतलब होता है ऊपर. So on is also a preposition. And not I, said the noisy duck who was resting near the pool. Near का मतलब है पास. So near also tells us the place. Where was the duck resting? Near the pool. Pool के पास. Pool मतलब छोटा सा पानी का एरिया जैसे है. So pool is a naming word and near is a preposition. ठीक है? So children, you will see that in a sentence हर एक word जो है वो अलग अलग meaning convey करता है. Okay? Now I will start from here. Then I will. From here onwards. इसके पहले तक का हमने कर लिया है. Okay? So I will start from here. Then I will. Said the little red hen. Said the Little little red hen. Full stop. She buried the wheat. She B-U-R-I-E-D. Buried the W-H-E-A-T. Wheat. She buried the wheat in the ground. G-R-O-U-N-D. Ground. After A-F-T-E-R. After some time, the wheat plant grew up. The wheat plant grew up. Yellow and ripe. Y-E-L-L-O-W. Yellow and ripe. Okay. Now next is then I will. When all the three animals refused to help the little red hen, जब तीनों ने little red hen को हेल्प करने से रिफ्यूज कर दिया, then what did she say?
She said, then I will, said the little red hen. Since the lesson is in past tense, so said is the past form of say. Say का past form है said. तो little red hen ने क्या कहा? Okay, then I will. अगर कोई नहीं करेगा तो फिर मैं करती हूँ. Said the little red hen. यहाँ पे little red hen and then after this for little red hen the word she is used. ठीक है, यहाँ पे little red hen and now here the word she is used for little red hen. So she is a pronoun. P-R-O-N-O-U-N. Pronoun. ठीक है, noun, pronoun. Nouns are the naming word. Hen. Hen is a naming word. यहाँ पे हम hen की जगह she use कर रहे हैं तो she is a pronoun. She buried. Buried का मतलब है दबा देना. ठीक है, buried is the past form of the word B-U-R-R-Y. Bury. Bury means दबा देना. Since ये मैंने beginning में ही बताया that the lesson is in past tense. Lesson किस में है? Past tense में है. Okay? So therefore the word buried is used. Buried is the past form of bury. Now children, as I have told you that when we use past form of action words, we add D or ED. Here you will see that spelling is B-U-R-R-Y. इसको जब हमने past form में use किया तो the spelling becomes B-U-R-R-I-E-D. ठीक है, Y is removed. Y को हटा दिया. तो ये भी एक रूल है. ठीक है, कुछ वर्ड्स में हम अगर लास्ट में Y है, जैसे cry. ठीक है, तो word cry, C-R-Y, the past form is C-R-I-E-D. ठीक है, so in some words there are different rules in English. Okay, so in some words अगर लास्ट में Y आता है, उन्हें जब हमें past form में लिखना होता है तो we remove Y and in place of Y we add I and ED. So buried is the past form of the word bury. Buried means दबा देना. ठीक है, so buried is action word, verb. She buried the wheat. Wheat क्या है? गेहूं. एक क्रॉप का नाम है, एक खाने की चीज का नाम है. Wheat is a naming word. Okay, she buried the wheat in the ground. In, the word in, it tells us the place. कहाँ पे wheat को bury किया? कहाँ दबाया? जमीन में. So in is also it is a preposition. The spelling is P-R-E-P-O-S-I-T-I-O-N. Preposition. अभी ग्रामर में ये सारे वर्ड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. So preposition means the word which tells us the place. ठीक है, तो in the ground, कहाँ प्लांट को उसने wheat grains को कहाँ दबाया? ग्राउंड में. So in the ground. In is a preposition. It tells us the place. The ground. Ground is naming word. कहाँ प्लांट किया? कहाँ दबाया? ग्राउंड में, जमीन में. Okay. After some time. After means कुछ समय के बाद. After some time, the wheat plant grew up yellow and ripe. Wheat is a naming word. Plant, यहाँ पे plant जो है that is a naming word. Here the word इसके पहले वाले पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा था who will plant the grains. So वहाँ पे जो word plant था that was used as an action word. ठीक है, वहाँ पे plant को as action word use किया था. And here the word plant is used as a naming word. यहाँ पे क्या है? wheat plant मतलब गेहूं का पौधा. तो यहाँ पे plant जो word है that is used for plants, पौधा जो होता है. Okay, wheat plants grew. Grew is the past form of grow. G-R-O-W. Past form is G-R-E-W. Grew. Grow मतलब बढ़ना. जैसे मैंने बताया कि in English some words take a different spelling in past form. Past form में कुछ words जो है उनकी spelling एकदम change हो जाती है. So grew is the past form of grow. G-R-O-W. ठीक है, तो after some time the wheat plant grow up yellow and ripe. मतलब कुछ समय के बाद wheat plant बड़े हुए. कैसे थे वो? Yellow and ripe. Ripe means they were absolutely ready to be eaten. खाने के लिए वो बिल्कुल ready थे. तो यहाँ पे yellow and ripe. Both these words they tell us something about the plant. ठीक है,
ये वर्ड्स हमें किसके बारे में बता रहे हैं? येलो एंड राइप, दे आर टेलिंग अस अबाउट द प्लांट। प्लांट कैसे हो गए? येलो एंड राइप। प्लांट जो थे वो येलो पीले पीले हो गए और बिल्कुल राइप पक गए। सो दीज टू वर्ड्स येलो एंड राइप, दे आर describing words because here they are describing the plant. They are telling us something about the plant. Okay. Now next paragraph. Now again, the wheat is ripe now. Who will cut and thresh it? The little red hen said, the wheat is ripe now. Who will cut and thresh, thresh it? Who will cut and thresh it? Asked little red hen. Okay, the wheat is ripe and the wheat is ripe now. Who will cut and thresh it? Since little bird is asking, so therefore this is with an inverted comma. ये लिटिल रेड हैन जो है, शी इज आस्किंग दिस सेंटेंस, वो अपने फ्रेंड्स को ये पूछ रही है कि अभी तो द व्हीट इज राइप नाउ. नाउ हियर व्हीट इज नेमिंग वर्ड, गेहूं. राइप नाउ, राइप मतलब पका हुआ. सो राइप इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड बिकॉज इट इज टेलिंग अस समथिंग अबाउट द व्हीट. ये हमें व्हीट के बारे में बता रहा है. तो द व्हीट इज राइप नाउ मतलब व्हीट जो है वो बिल्कुल पक गया है. नाउ मतलब अब. ठीक है. नाउ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच. अभी इसके बारे में थोड़ा और बाद में बताऊंगी, थोड़ा सा ग्रामर और पढ़ लेंगे, देन आई विल टेल यू. ठीक है. हु विल कट एंड थ्रेश इट. हु मतलब कौन. हु इज अ क्वेश्चन वर्ड. नाउ शी इज आस्किंग कि हु विल कट एंड थ्रेश इट. अब इसको कौन कट करेगा और कौन थ्रेश करेगा. कट इज काटना एंड थ्रेश मीन्स सीड्स को प्लांट्स में से अलग करना, थ्रेशिंग. ठीक है. सीड्स को प्लांट से जो अलग करने का प्रोसेस होता है, व्हीट जो गेहूं की जो जब क्रॉप होती है तो उसमें से पहले क्रॉप मतलब छिलके में से व्हीट के ग्रेन्स को निकालना होता है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग. जो मिल्स होती हैं बड़े बड़े जो वहां पे मशीन से करते हैं ये चीज. तो उसने पूछा. सो कट एंड थ्रेश बोथ आर एक्शन वर्ड्स. कट माने काटना और थ्रेश मतलब उसको सीड्स ग्रेन्स को प्लांट में से अलग करना. सो बोथ दीज आर एक्शन वर्ड्स. एंड हु विल कट एंड थ्रेश इट. हियर इट इज यूज फॉर रेडी, जो राइप प्लांट जो था उसके लिए इट यूज किया है. व्हीट प्लांट वॉज रेडी नाउ, तो उसके लिए यहाँ पे इट वर्ड यूज किया है कि अभी वो बिल्कुल व्हीट प्लांट अभी बिल्कुल राइप हो गया है, रेडी है. इसको कौन अब काटेगा और थ्रेश करेगा. ठीक है. सो हियर द वर्ड इट इज यूज फॉर व्हीट. ओके. आस्क लिटिल रेड हेन. लिटिल रेड हेन ने पूछा सबसे. आस्क जैसे बताया मैंने कि दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड आस्क. ठीक है. आस्क इज अगेन एन एक्शन वर्ड. आस्क माने पूछना. ओके. सो द व्हीट इज राइप नाउ. हु विल कट एंड थ्रेश इट. आस्क द लिटिल रेड हेन. Not I, said the lazy dog. Again, all three refused. Not I, said the lazy dog. ठीक है. लेजी डॉग ने कहा नॉट आई, मैं तो नहीं करूंगा. नॉट I said the sleepy cat, and not I
said the noisy duck. Okay. Not I said the lazy dog. मतलब जो लेजी डॉग था उसने एज यूजुअल मना कर दिया. ही सेड नॉट आई, मैं तो नहीं करूंगा. ठीक है. हियर ये मैं पहले बता चुकी हूँ. लेजी इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, डॉग इज अ नेमिंग वर्ड. नॉट आई, मैं भी नहीं करूंगा. नॉट, व्हेन डू वी यूज नॉट? वी यूज नॉट जब हमें किसी काम के लिए मना करना होता है. नो. ठीक है ना. तो आई विल नॉट डू इट, मैं तो ये नहीं करूंगा. आई विल नॉट गो. जब हमें कभी मना करना होता है देन वी यूज नॉट. तो since lazy dog, sleepy cat and noisy duck, all three of them refused. So not I said the lazy dog, not I said the sleepy cat, not I said the noisy duck. Okay? अभी मैं इसके आगे का लिखूं. Since first line is same, जो भी नेक्स्ट पैराग्राफ लिखूंगी उसकी फर्स्ट लाइन यही सेम है. देन आई विल सेड द लिटिल रेड hen. इसीलिए ये लाइन मैंने नहीं इरेज किया. अभी यहां से मैं लिखती हूँ. When all three of them refused, तीनों ने रिफ्यूज कर दिया काम करने से. Then what did the little red hen say? She said, okay, then I will. अब जब कोई नहीं करेगा तो उसने कहा कि मैं खुद करूंगी. So when she asked who will cut and thresh it, all three refused. So then I will said the little red hen. Since this is the same line, इसीलिए मैंने ये लाइन नहीं इरेज किया. She cut it with her bill. She cut it with her bill and threshed it. T-H-R-E-S-H-E-D. Threshed it with her wing. ठीक है. Then I will. फिर मैं ही करती हूँ. Said the little red hen. Little red hen ने कहा. Now again here she is used for little red hen. यहाँ पे she किसके लिए यूज हुआ है? For little red hen. She cut it. Cut मतलब काटना. तो it shows an action. यहाँ पे cut का मतलब है काटना. तो उससे हमें एक एक्शन पता चल रहा है. So that means it is an action word. ठीक है. Cut is an action word. She cut it. यहाँ पे again it is used for wheat. Then I will said the little red hen. She cut it. Here it is used for the wheat plant. यहाँ पे it word जो है वो wheat plant के लिए यूज हुआ है. So it is also a pronoun. Like she, जैसे she यूज किया है for little red hen, it is used for wheat plant. So it is also an action word. It is also a pronoun. ठीक है. Pronoun because it is used for wheat plant. So all the words which are used in place of noun. ठीक है. अगर कोई नाउन जो है कोई नेमिंग वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वो रिपीट ना हो उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं they are known as pronoun. So here it is a pronoun because it is used for wheat plant. So she cut it with her bill. Bill is a tool to cut as you can see in the picture. ठीक है. टूल मतलब इंस्ट्रूमेंट जिसको हिंदी में हम औजार कहते हैं. ठीक है. तो ये देखा होगा विलेज वगैरह में लोग जब घास काटते हैं तो एक हाथ से घास को ऐसे पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में वो बिल लेकर कैसे ऐसे काटते जाते हैं. बहुत शार्प सा होता है. तो उसने शी कट इट विथ हर बिल. उसने व्हीट प्लांट को अपना बिल से काटा. एंड सो हियर बिल इज अ नेमिंग वर्ड. बिल इज द नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. बिल यहाँ पे क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है. बिल इज द नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. तो उसने व्हीट प्लांट को अपने बिल से काटा. एंड थ्रेश्ड. थ्रेश्ड का मतलब है ग्रेन्स को प्लांट से सेपरेट करना. ठीक है. ग्रेन्स को प्लांट से अलग करना.
थ्रेश मीन्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट बाय बीटिंग. ठीक है, तो जब फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, मिल में ले जाते हैं, तो वहां तो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उससे अलग करते हैं. यहाँ पे तो एक वीट प्लांट था, तो उसने उसको अपने विंग से ऐसे मार मार करके उसकी थ्रेशिंग कर दी. तो थ्रेश इज अगेन THRESH. थ्रेश इज द वर्ड. थ्रेश इज द पास्ट फॉर्म. थ्रेश इज द पास्ट फॉर्म ऑफ थ्रेश. दिस इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड, या जिसको हम वर्ब कहते हैं. थ्रेश्ड इट, अगेन इट इज अ प्रोनाउन. इट इज यूज फॉर, इट यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? इट इज यूज फॉर wheat plant. ठीक है, it is used for wheat plant and threshed it with her wing. Her and her, किसके लिए यहाँ पे her यूज हुआ है? Her means उसका. Her is also a pronoun. यहाँ पे her जो है, her is used for the little red hen. Little red hen ने she cut it with her. Little red hen ने wheat plant को अपने, ठीक है, अपने बेल से काटा एंड अपने विंग से उसकी थ्रेशिंग की. तो यहाँ पे हर इज ऑल्सो अ प्रोनाउन. ओके, एंड हर विंग. विंग इज अ नेमिंग वर्ड. बिल एंड विंग, दीज आर नेमिंग वर्ड. कट एंड थ्रेश्ड, दीज आर एक्शन वर्ड्स. नाउ चिल्ड्रन, सम एक्शन वर्ड्स डू नॉट चेंज इन पास्ट टेंस ऑल्सो. ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सब में उनका फॉर्म सेम रहता है. दे डू नॉट चेंज, उनकी कोई स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, उसमें कोई डी या आईडी नहीं ऐड होता है. सो कट, कट इज वन सच वर्ड. कट का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब सेम है. कट कट कट. प्रेजेंट टेंस में भी हम CUT कट यूज करते हैं. फॉर पास्ट टेंस ऑल्सो वी यूज CUT कट. वी डू नॉट से कटेड. शी कटेड हम नहीं कहते हैं, शी कट. ओके, तो कुछ वर्ड्स है जो कि प्रेजेंट पास्ट दोनों में सेम यूज होते हैं. लाइक पुट, वी डू नॉट से पुटेड, इसे पुट. ओके, शी कट इट विथ हर बिल एंड थ्रेश्ड इट विथ हर विंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु विल टेक दिस वीट टू द मिल? शी आस्क्ड. अभी अलग अलग प्रोसेस था. सबसे पहले वीट को लगाया, फिर ग्रू हुआ तो उसको कट करना था, कट करके थ्रेश करना था, कटिंग एंड थ्रेशिंग के बाद ग्रेन्स को मिल लेकर जाना था ग्राइंडिंग के लिए, वहां पे ग्राइंड करा करके उसको वापस लेकर के आना था. सो देयर वाज डिफरेंट प्रोसेसेस. नाउ शी इज आस्किंग, फिर उसने पूछा, जब कटिंग हो गई, थ्रेशिंग हो गई, देन शी आस्क्ड हु विल टेक दिस वीट, हु विल take this wheat to the mill? She asked. अब उसने पूछा कि who will take this wheat to the mill? कि अब ये जो वीट कट गया, इसको मिल कौन लेकर के जाएगा. ठीक है, सो हु विल टेक. टेक इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड, मतलब कौन लेकर जाएगा. टेक मतलब ले जाना. दिस वीट टू द मिल. ठीक है, तो एज यूजुअल, नॉट आई, सेड द लेजी डॉग. अच्छा, ओके चिल्ड्रन, अभी नॉट आई, इसके बाद से वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, अभी बस यहीं पे मैं रोकती हूँ, बिकॉज टाइम भी अभी खत्म होने वाला है क्लास का. तो आई विल नॉट प्रोसीड एनी फर्दर. सो आगे की स्टोरी हम सबको मालूम है कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. हु विल टेक दिस वीट टू द मिल. जो सेंटेंसेस, वॉट एवर क्वेश्चन द लिटिल रेड हेन इज आस्किंग एंड वॉट एवर आंसर्स द अदर एनिमल्स आर गिविंग. ठीक है, सिंस जो हेन है वो डायरेक्टली क्वेश्चन कर रही है, सो दैट इज वाई इट इज इन इन्वर्टेड कॉमा. ये और ये इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा. ओके, एंड जो उसके फ्रेंड्स, जो दूसरे एनिमल्स जो आंसर दे रहे हैं, वो भी डायरेक्टली आंसर दे रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो विद इन इन्वर्टेड कॉमा. ओके, सो रिमेंबर चिल्ड्रन, वी हैव डन टिल हियर. हु विल टेक दिस वीट टू द मिल. कौन इस वीट को मिल तक लेकर के जाएगा. तो एज यूजुअल ऑल थ्री ऑफ देम रिफ्यूज्ड. तीनों ने मना कर दिया. अभी तीनों ने अपनी अपनी, तीनों की प्लेस चेंज हो गई थी, बट दे रिफ्यूज्ड.
उसके बाद लिटिल रेड हैंड अगेन सेड ठीक है मैं ही लेकर जाती हूँ। फिर वहां पे ग्राइंडिंग के बाद फिर उसने पूछा कि हु विल टेक इट बैक टू द फार्म। वहां पे उसने पूछा, वहां भी कोई किसी ने हेल्प नहीं किया। फिर देन शी आस्क्ड हु विल बेक ब्रेड, सबने रिफ्यूज कर दिया, बट खाने के लिए सारे रेडी थे। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यहाँ तक समझ में आया। एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इन द पैराग्राफ। ठीक है, कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, टू विच पार्ट ऑफ स्पीच इट बिलोंग्स टू। ओके, so I hope children this much is understood. In case of any doubt you can ask me in the online class. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much and have a nice day.